کورونا کی تیسری لہر، 44 افراد زندگی کی باسی ہار گئے، 3667 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.7%۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ، مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان اور بیرون ملک سے نیک خواہشات پر اظہار تشکر۔ اہلیہ اور میرے لیے کورونا سے صحت یابی کی دعاؤں پر سب کا شکر گزار ہوں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ عالمی سطح پر کورونا کے وار جاری، متاثرہ افراد کی تعداد 12.36 سے تجاوز کر گئی، 27,24,000 ہلاکتیں۔ جرمنی، فرانس، پولینڈ اور یوکرائن سمیت کئی ملکوں میں جزوی اور کہیں مکمل لاک ڈاؤن۔ فلپائن میں مساجد، گرجا گھر، تفریح گاہیں اور میٹرو سروس بند۔ کورونا سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول کی صحت کے لیے دعاگو ہیں، چاہتے ہیں کہ کورونا کی موجودہ لہر میں لوگوں کا روزگار اور زندگیاں محفوظ رہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے کورونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی، گمراہ کرنا چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو کہ یہ صحت کے لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری سیاست کی ہے۔ پی ڈی ایم ماضی کا قصہ بن چکی، کرپٹ مافیا چاہتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر رہے۔ اپوزیشن کے واویلے کے باوجود حکومت نے معاشی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی۔ ملک و قوم کی فلاح کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی، سینیٹر شبلی فراز۔ یوم پاکستان قوم اور قائدین کا اسلامی فلاحی ریاست کے لیے تجدید عہد۔ منگل کو یوم پاکستان اس عزم سے منایا جائے گا کہ ملک کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق حقیقی فلاحی مملکت بنائیں گے۔ بے گناہ سکھوں کا قتل عام، مقبوضہ کشمیر میں چھتی سنگھ پورہ قتل عام کی 21ویں برسی۔ بھارتی ایجنسیوں نے RSS کے قاتلوں کے ذریعے قتل عام کرایا، سکھ رہنماؤں کو اقوام متحدہ سے ازسر نو تحقیقات کا مطالبہ۔ کسان احتجاج سے مودی حکومت پریشان، کاشتکاروں کا نئی پارٹی بنانے کا اعلان۔ ہریانہ، پنجاب، راجستھان میں جلد سے کالے قوانین کے خاتمے تک دھرنا جاری رہے گا، کسان رہنماؤں کا انتباہ۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جشن نوروز، موسم بہار کی آمد کا یہ تہوار 3000 سال سے منایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں نوروز اور یوم پاکستان کی تقریبات قومی ہیرو محمد علی ستپارہ سے منسوب۔ جاتی ہوئی سردی لوٹ آئی، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش، شمالی بلوچستان اور سندھ کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی اطلاعات۔ بارش کا حالیہ سلسلہ منگل کی صبح وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، پاک فوج نے انٹرنیشنل ایڈونچر مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ ایونٹ میں دوڑ، سائیکلنگ اور کشتی رانی کے مقابلے شامل تھے۔ نیپال میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں 20 ٹیموں نے شرکت کی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز اہم ہے، تمام کھلاڑی اچھی فارم میں ہیں، ہماری توجہ T20 ورلڈ کپ پر بھی مرکوز ہے۔ نائب کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاداب خان کی نیوز کانفرنس۔
اور ٹوکیو اولمپکس کے دروازے غیر ملکی شائقین کے لیے بند۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے غیر ملکی شائقین کو جاپان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خریدے گئے ٹکٹس کی رقم واپس کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سمینہ رانا، اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ خطے جو دنیا کے جنگلات کا 5واں حصہ ہے، عالمی سطح پر بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نہایتی حساس پہاڑی سلسلے کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خطرات درپیش ہیں۔ قدرتی جنگلات کو تحفظ دے کر 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا شجرکاری مہم کے تحت گلگت بلتستان میں 17 کروڑ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے ان پہاڑی وادیوں کی ہریالی کو محفوظ رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ماسک پہنیں اور محفوظ رہیں۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 44 افراد جان کی باسی ہار گئے، جبکہ اس دوران 3667 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک مجموعی طور پر 13,843 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 31,107 ہے۔ کورونا وبا کی تیسری لہر کے باعث بیشتر شہروں میں حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کر دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور بیرون ملک سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کووڈ-19 کے مثبت آنے پر ان کے اور خاتون اول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں میں یاد کرنے پر وہ ان افراد کے مشکور ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کورونا وبا سے بچنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ہم سب وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ کورونا کی موجودہ لہر میں لوگوں کا روزگار اور زندگیاں محفوظ رہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم رضوان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ گزشتہ 8 ماہ میں کورونا متاثرین کی شرح سب سے زیادہ ہے، تاہم خطے کے دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان کی معیشت کی کارکردگی بہتر رہی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی موجودہ لہر میں ویکسین کی دستیابی خوش آئند ہے۔ انسداد کورونا کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ انجیکشن لگانے کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کو کورونا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ ویکسینیشن اپنا اثر دکھاتی ہے۔ 21 دنوں کے بعد جب آپ کو دوسرا انجیکشن بھی لگے، مولانا فضل الرحمان جنہوں نے کورونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی، گمراہ کرنا چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، یہ صحت کے لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پی ڈی ایم ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے اب بہت ہی اپنی جو وش لسٹ ہے، جو خواہشوں کی جو ایک لسٹ ہے، اس کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو، تو کبھی نیب پہ چڑھ دوڑو، تو کبھی اداروں پہ چڑھ دوڑو، کبھی پنڈی کی طرف چل پڑو۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ اسی بات کا ایک ثبوت ہیں کہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری سیاست کی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے مزید کہا کہ ملک و قوم کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اب ہم اصلاح اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل حکومت کی ترجیح ہے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
दुनिया भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासिर होने वाले 12 करोड़ 36 लाख अफराद में से 27 लाख 24 हजार से ज्यादा लुक्मा अजल बन चुके हैं, ताहम 9 करोड़ 96 लाख सेहतयाब हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 5 लाख जबकि हलाकतों की तादाद 5 लाख 55 हजार है। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 2 लाख 93 हजार और मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 20 लाख है। हलाकतों के एतबार से मैक्सिको का तीसरा नंबर है, जहां पर अब तक 1 लाख 98 हजार अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। भारत में कोरोना से 1 लाख 60 हजार से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 1 करोड़ 16 लाख मुतासर अफराद हैं। बरतानिया में 1 लाख 26 हजार और इटली में 1 लाख 4 हजार से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। यूरोप के कई मुल्कों में कोरोना की तीसरी लहर ने बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर किया है। जर्मनी में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद के बाद चांसलर एंजेला मर्केल ने पाबंदियों में अप्रैल तक तौसीह कर दी है। फ्रांस में दारुल हुकूमत पेरिस समेत कई शहरों में जुज़वी लॉकडाउन है। पोलैंड और यूक्रेन में भी कोरोना की तीसरी लहर के बायस कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। फिलिपाइन में मसाजिद, गिरजाघर, तफरीगाहें और मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई है। नाज़रीन, करारदाद पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान तक का सफ़र मंजिल के हुसूल के लिए अनथक जिद्दोजहद के साथ साथ ज़ीरक और मुदब्बिराना क़यादत का भी मुतकाज़ी था, जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बेमिसाल अज़्म, तदब्बुर, हिकमत और जुर्रत के साथ वलवला अंगेज़ किरदार अदा किया और इसकी बदौलत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अजीम इस्लामी मुमलिकत की सूरत में उभर आया। देखते हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की ये रिपोर्ट। मार्च 1940 की करारदाद दरअसल वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान के क़याम का आगाज थी, जिसके फौरी रद्द अमल में कांग्रेस बदतरीन मुखालफत पर उतर आई। वहीं बाबा कौम भी चट्टान की मानिंद मुसलमानों के इस जुदागाना मुतालबे के लिए सबकफ खड़े रहे। दूसरे जंग अजीम में बरतानवी हुकूमत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ताउन की हाँ थी, जबकि बाबा कौम ने बरतानवी साम्राज्य के हुक्मरान लॉर्ड लिथिंगो पर अपने ताउन का यकीन इस बात से मशरूत करके दो कौमी नजरिए को दवाम बख्शी कि मुस्लिम लीग को शामिल किए बगैर आइंदा दिनों में उस वक्त के इंडिया के मुसलमानों के बारे में कोई कानून साजी या फैसला नहीं किया जाएगा। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के पेश किए गए प्रोपोजल को जहां कायदे आजम ने मुसलमानों के नुक्ता नजर से मुस्तरद किया, वहीं कायद को ये इत्मीनान भी हुआ कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम को बरतानवी हुकूमत भी पहली दफा तस्लीम कर रही है। कायदे आजम की सियासी बसीरत और मुसलमानों की क़यादत के लिए अनथक जद्दोजहद के नतीजे में 1945-46 के जनरल इंतखाबात में मरकजी असम्बली में भारी अक्सरियत से मुसलमानों ने नशिस्तें जीती और अपनी अददी शनाख्त जाहिर की। 3 जून 1947 को रेड क्लिफ कमीशन के क़याम के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों की अजीम जद्दोजहद और कायदे आज़म की गैर मुतज़लज़ल क़यादत का इनाम है, जिसकी कदर हम सब पर लाजिम है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। 23 मार्च 1940 जनूबी एशिया की तारीख का वो अहम तरीन दिन जब मुस्लिम लीग के 34वें सालाना इजलास में मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत की करारदाद मंजूर हुई। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बलूचिस्तान के सियासी अकाबरीन ने भी अलहदा मुमलिकत बनाने की जिद्दोजहद में अपना हिस्सा शामिल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। ये 23 मार्च 1940 का दिन था जब लाखों मुसलमानों ने एक अलहदा, आजाद, खुद मुख्तार और इस्लामी फलाही मुमलिकत के क़याम को खित्ते के मुसलमानों के नागुज़ीर करार दिया। 23 मार्च के इजलास में अलहदा मुमलिकत की करारदाद मंजूर की गई। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग के अकाबरीन की कायदाना सलाहियत थी कि जिसने जनूबी एशिया के मुसलमानों में सियासी शऊर को बेदार किया। बलूचिस्तान में 1938 में काजी मोहम्मद ईसा ने यहाँ मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली, तो करारदाद पाकिस्तान तो 1940 में हुई। तो 1938 में जब मुस्लिम लीग की बुनियाद यहाँ डाली गई तो सरदार मोहम्मद खान जोगेज़ई, बल्कि नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई ने उसको सपोर्ट किया। और फिर आप देखेंगे कि 1940 में जब लाहौर में सारा इज्तिमा हुआ आल मुस्लिम लीग का, तो बलूचिस्तान के अच्छे खासे सारे लीडर जो थे, जो सरदार थे, वो वहाँ पे तशरीफ ले गए। तो 1940 में यानी बड़े सगीर की मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि हमने अपने लिए अलग से मुमलिकत हासिल करनी है। बलूचिस्तान के सियासी अकाबरीन ने मुस्लिम लीग की तारीखी लाहौर कन्वेंशन की पुरजोर हिमायत की, दो कौमी नजरिए की अहमियत पर जोर दिया और अलहदा मुमलिकत के क़याम की जिद्दोजहद में भरपूर साथ दिया।
चूँकि उस जमाने में शाही जिरगा होता था जिसमें कोई 40 के करीब अरकान होते, सारे सरदारों को मुश्तमिल था, बलोच भी पश्तून भी। तो उन सरदारों ने फिर मुतफ़क़ा तौर पर फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना है या कि हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ मिलना है। 23 मार्च का दिन उस अहद की तजदीद का दिन है कि हमें अपने अजदाद की पैरवी करते हुए मुमलिकत खुदादाद की नजरियाती सरहदों की हिफाजत और अक़वाम आलम में सब्ज़ हिलाली परचम को सरबुलंद रखना है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। अंग्रेज सरकार के दौर में जिन इदारों ने मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और उनकी नजरियाती सरहदों का दिफा किया, उनमें एक मोतबर नाम इस्लामिया कॉलेज पेशावर का भी है। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इस इदारे से खुसूसी लगाव था। इस हवाले से देखते हैं मुदस्सिर खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। 121 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ये कॉलेज पहली आलमी जंग से 1 साल कबल 1913 में कायम किया गया। इस अजीम दरसगाह ने खैबर पख्तूनख्वा, इससे मुल्हका कबायली इलाके और अफगानिस्तान को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पूरी जिंदगी में 3 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ लाए। आपने ये दौरे 1936, 1945 और 1948 में किए। हर मरतबा बाबाए कौम ने पेशावर में क़याम के दौरान इस्लामी कॉलेज को देखने और तलबा से खिताब करने के लिए वक्त निकाला। इस्लामी कॉलेज पेशावर से कायद-ए-आज़म की अकीदत और दिली मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1939 में आपने एक वसीयत के जरिए अपनी ज़ाती जायदाद बरसगीर की 3 मुस्लिम दरसगाहों के लिए वक्फ किया था। इन दरसगाहों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इस्लामी कॉलेज पेशावर और सिंध मदरसतुल इस्लाम शामिल है। 3 जून 1939 के मंसूबे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के सवाल पर रेफरेंडम का इनेकाद किया गया था, जिसमें सूबे के अवाम ने पाकिस्तान के हक में फैसला देकर अपने बेहतर मुस्तकबिल का फैसला किया था। इस तारीखी मौके पर इस्लामी कॉलेज पेशावर के तलबा के किरदार को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज ये इदारा तरक्की के मनाजिल तय करते हुए यूनिवर्सिटी के शक्ल में मौजूद है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में सिख रहनुमाओं, भारतीय फौज के रिटायर्ड अफसरों और वुकला ने कहा है कि मार्च 2000 में भारतीय एजेंसियों के हाथों हिंदू इंतहा पसंद RSS के दहशतगर्दों के जरिए जिला इस्लामाबाद के इलाके छठी सिंहपुरा में 35 बेगुनाह सिखों का कत्लेआम तारीख का सियाहबाब है। छठी सिंहपुरा कत्लेआम की 21वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सर्वेज और इंटरव्यूज पर मबनी कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एजेंसियों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने के लिए छठी सिंहपुरा और इस तरह की दूसरी वारदातें कराई ताकि ये कत्लेआम उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौराए भारत के मौके पर करवाया गया। अलमनाक वाक़े में जिंदा बच जाने वाले वाहिद सिख नानक सिंह ने कहा है कि कातिल एक दूसरे को हिंदू नामों से पुकारते थे और वो बेगुनाह सिखों पर गोलियां चलाते हुए जय हिंद के नारे लगा रहे थे। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गुल ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि भारतीय फौज उस कत्लेआम में मुलव्वस है। छठे सिंहपुरा कत्लेआम के बाद अगले कुछ रोज के दौरान पथरीबल में जाली मुकाबले में 5 बेगुनाह मजदूरों और बराकपुरा में 8 पुरअमन मुजाहिरीन को भी शहीद किया गया। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर से एक बयान में छठी सिंहपुरा कत्लेआम की असर-ए-नौ तहकीकात का मुतालबा किया है। जम्मू में एस नरेंद्र सिंह खालिसा की ज़ेर सदारत इजलास में सीनियर सिख रहनुमाओं ने छठी सिंहपुरा, पथरीबल और बराकपुरा में भारतीय फोर्सेज की तरफ से कत्ल किए गए बेगुनाह सिखों और मुसलमानों को खराज अकीदत पेश किया। इंसानी हकूक के कारकुन मोहम्मद आसन ओंतो ने छठी सिंहपुरा कत्लेआम की तहकीकात किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के जरिए कराने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने एक बयान में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की अहलिया डॉक्टर बिल्कीस शाह को दिल्ली की अदालत की तरफ से झूठे मुकदमे में तलब करने की शदीद मजम्मत की है। नाज़रीन, सोशल मीडिया सारिफीन ने मुसन्निफा आयशा सदीक़ा को उनके ट्वीट्स पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने गलत बयानी से काम लेते हुए कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 18 मार्च को इस्लामाबाद में सलामती से मुतालिक मुकालमे में अपनी तकरीर में कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बहुत से ये सोशल मीडिया सारिफीन ने हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया है कि आयशा सदीकी जैसी मुसन्निफा आर्मी चीफ की तकरीर के मुकम्मल मतन को पढ़े बगैर किस तरह गुमराहकुन बयान जारी कर सकती हैं। उन्होंने गलत बयानी करते हुए कहा कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में अपनी तकरीर में कश्मीर का जिक्र नहीं किया।
सारिफी ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आयशा जैसी मुसन्निफा कैसे आर्मी चीफ की तकरीर का मुकम्मल मतन पढ़े बगैर इस तरह का गुमराहकुन बयान जारी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी तकरीर में कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के हल पर जोर देते हुए दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। सोशल मीडिया सारिफी ने कहा कि आयशा ने जानबूझकर गलत बयानी की होगी क्योंकि वो बदनाम ज़माना पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम मुखालिफ रॉ एजेंट तारिक फतेह के साथ मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारत में मंदिर से पानी पीने वाले मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। ट्विटर पर अपने पैगाम में गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क और जनूनी हिंदुओं का गढ़ बन चुका है। मोदी RSS के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान होना भारत में जुर्म बन चुका है। भारतीय फोर्सेज भी इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती हैं। उन्होंने आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर खामोशी खत्म करें, अक़लियतों पर मजालिम का नोटिस लें। काले ज़रई क़वानीन के खिलाफ भारत भर में काश्तकारों का एहतजाज जारी है। किसान एहतजाज को जाट तहरीक कहने पर सियासतदानों ने BJP को आड़े हाथों ले लिया। मथुरा में किसान महापंचायत से खिताब करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नायब सदर ने कहा कि किसानों के एहतजाज को किसी एक कम्युनिटी से जोड़ना गलत है। मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में मुल्क भर से किसान शरीक हैं जो हर तरफ मोदी सरकार के खिलाफ अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। महापंचायत में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी मोदी हुकूमत की जानिब से किसानों को दहशतगर्द कहने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BJP किसानों के इत्तेहाद से खौफजदा है। दूसरी जानिब कर्नाटक के शहर में भी किसानों के इजलास से खिताब करते हुए किसान रहनुमा राकेश टाकीत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से जमीन छीनने की हिकमत अमली बना ली है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग इस वक्त दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। ये लड़ाई तवील अरसे तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत तीनों काले क़वानीन वापस नहीं ले लेती। हमें हर शहर में इस तरह का एहतजाज शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि नई दिल्ली की तरह कर्नाटक और बेंगलोर में भी काले ज़रई क़वानीन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तहरीक में शामिल हों। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शऊर उजागर करना और मुआशरे में बर्दाश्त और मसावात के कल्चर को फरोग देना है। तफसील बता रहे हैं राना शहजाद सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने अक्टूबर 1966 में 21 मार्च के दिन को नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी दिन करार दिया था। नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे का आलमी दिन 1960 में जनूबी अफ्रीका में होने वाले उस वाक़े की याद में मनाया जाता है जब जनूबी अफ्रीकन पुलिस ने नस्ली इम्तियाज के कवानीन के खिलाफ मुजाहरा करने वाले पुरअमन अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 69 मुजाहिरीन हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां साल नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर नौजवान नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए उठ खड़े हों के उन्वान से थीम भी जारी किया है। This year, the International Day for the Elimination of Racial Discrimination highlights the important role of youth who have been in the forefront of the fight against racism. Young people's attitudes and behavior will dictate the future shape and look of our societies. So I appeal to young people everywhere, as well as educators and leaders, to teach the world that all people are born equal. अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दुनिया में आने वाला हर इंसान आज़ाद हैसियत रखता है। तमाम इंसानों की इज्जत और हुकूक बराबर हैं। हर किसी को माशरे की फलाह बहबूद के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। नस्ल परस्ताना सोच और इम्तियाजी सलूक रखने वाला माशरा हर लिहाज से काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। तमाम रियासतों पर फर्ज है कि वो इम्तियाजी कवानीन के खात्मे और माशरे में बराबरी की रवश को फरोग दें ताकि नस्ल परस्ती की सोच की हौसला शिकनी हो सके। We see racism in the pervasive discrimination suffered by people of African descent. We see it in the injustices and oppression endured by indigenous peoples and other ethnic minorities. We see it in the repugnant views of white supremacists and other extremist groups. And wherever we see racism, we must condemn it without reservation, without hesitation, without qualification. इसके साथ ही इस जरूरत पर भी जोर दिया गया है कि तारीख के फराहम करदा असबाब को हम समझें ताकि हम मौजूदा नस्ल परस्ती और नस्ली इम्तियाजात का मुकाबला कर सकें। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात की और उनसे अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखिला पर बात की।
نیٹو اور امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی وزیر دفاع آج اچانک غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے چند روز قبل کہا تھا کہ سابق ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ AFP کے مطابق پینٹاگون نے امریکی وزیر دفاع کے افغانستان سے بخیریت واپسی تک ان کے حوالے سے کوئی بھی خبر چلانے کی ممانعت کر رکھی ہے۔ سعودی عرب کے خارجہ امور کے وزیر مملکت عادل الجبیر کہتے ہیں کہ ان کا ملک خطے سمیت عالمی امن کا خواہاں ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب نیوز کو انٹرویو میں عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط اور کثیر الجہتی پر مبنی ہیں۔ امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے واشنگٹن اور ریاض کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کے ہمراہ گورنر ہاؤس کراچی میں 1 ایکڑ رقبے پر اربن فارسٹ کا افتتاح کیا، جہاں جاپانی ٹیکنالوجی میواکی کے ذریعے مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ وزیر اعظم عمران خان کے 10 بلین ٹریز منصوبے کے تحت کراچی کو موسم کی تباہکاریوں سے بچانے کے لیے گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم خان نے جاپانی ٹیکنالوجی میاواکی کے ذریعے درخت لگانے کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم خان نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے کے مختلف علاقوں میں وزیر اعظم کے 10 بلین ٹریز منصوبے کے تحت درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کنکریٹ جنگل کو واپس گرین کریں۔ پورٹ قاسم سے، کراچی پورٹ ٹرسٹ سے، ریلوے سے، PIA سے، سول ایویشن سے زمینیں ہم نے لی ہیں۔ ہم نے سندھ حکومت سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ لیاری ندی کے اندر اور ملیر ندی کے اندر ہمیں تھوڑی جگہ دیں۔ انشاءاللہ وفاق کی اور سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی معاونت سے ہم اس کے اندر بھی میاواکی فارسٹ لگائیں گے۔ 1 لاکھ ایکڑ مینگرووز ہم مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی ریورائن فارسٹ ہیں جو 50,000 ایکڑ سندھ کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس میں سے 13,000 ایکڑ پہ پلانٹیشن ہو چکی ہے۔ تیسرا ایسپیکٹ ہے وہ اربن فارسٹری کا۔ ہم نے 3 شہر کو ٹارگٹ کیا ہے، کراچی، حیدرآباد اور سکھر۔ اس موقع پر سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم خان نے گورنر ہاؤس کراچی میں پودے لگائے۔ کلوز اسپیسنگ کی وجہ سے اس میں فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ہے وہ کمپٹیشن آتا ہے درختوں میں، اور ان کی جو گروتھ ہے وہ اسٹریٹ اور اپورڈ جو ہے ورٹیکل گروتھ انڈیوس ہوتی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 1 ایکڑ رقبے پر مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں، جن میں پھل دینے والے پودوں کی تعداد زیادہ ہے، جس سے پرندوں کی افزائش کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ درختوں کی پلانٹیشن کراچی شہر کی ضرورت ہے، اور اس عمل سے اس شہر کو کانکریٹ جنگل سے ایک سرسبز شہر میں بدلا جا سکتا ہے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سوات موٹر وے، DI خان موٹر وے، دیر موٹر وے، چشمہ رائٹ لیفٹ کینال اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ سوات موٹر وے فیز 2 کی کمرشل اور فائنینشیل فیزیبلٹی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمیٹی سے منظوری لی جا چکی ہے، جبکہ منصوبے کی تعمیر کے لیے زمین کے حصول پر پیش رفت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پشاور DI خان موٹر وے اور چشمہ رائٹ بینک کینال کے مجوزہ منصوبوں پر مزید پیش رفت کے لیے وفاقی حکومت کے متعلقہ حکام کے ساتھ اگلے ہفتے اجلاس کی ہدایت کی۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوا نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ بہادری اور جرأت سے مشکلات برداشت کر رہے ہیں اور سندھ کے پسے ہوئے طبقے کی آواز بنے ہیں۔ وہ کراچی میں ان کی رہائش گاہ کے دورے کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کا کردار بری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے اور وہ حلیم عادل شیخ پر من پسند مقدمات بنا کر اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں۔ عمران خان کے نظریے کی آبیاری کرنے کے لیے سندھ میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے جو مقدمات کے تغمے اپنے سینے پہ سجا رہے ہیں، وہ تمام حقیقتیں حلیم عادل شیخ اور PTI کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں اور مقدمات کے بعد نہ صرف آشکار ہو گئی ہیں، بلکہ بدقسمتی سے
पीपल्स पार्टी का उनके साथ जुड़ा जो सिंध हुकूमत का किरदार है वो भी बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रहनुमा हर मुश्किल वक्त का मुकाबला करते हुए वजीर आजम इमरान खान के नजरिए को तकवीत देंगे। मीडिया से बात करते हुए पीटीआई सिंध के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है और ऐसे झूठे मुकदमात से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डराया नहीं जा सकता। इससे पहले मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके बच्चों से मुलाकात की। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरपर्सन मुस्लिम कम्युनिटी अमरीका साजिद तारड़ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिस जज्बे हुब्बुल वतनी और मेहनत से काम करके कमाया हुआ सरमाया पाकिस्तान भेजकर मुल्क की मईशत को सहारा दे रहे हैं वो काबिल तहसीन है। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी कर रखे हैं कि 22 मार्च को जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच इलेक्शन कमीशन में समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से पहले अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल पर नोटिस जारी किए। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए माली मुआवनत फराहम करने का सिलसिला तेजी से जारी है। इस मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जिससे 16 लाख से जायद अफराद को रोजगार मैसर आएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से ताहिर जाफरी। पंजाब हुकूमत की रोजगार स्कीम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत सूबे में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है जिसके जरिए हुनरमंद अफराद को कारोबार के आगाज के लिए माली मुआवनत फराहम की जा रही है। कोरोना वबा के बायस मुतासरा कारोबारी अफराद भी इस मंसूबे के जरिए अपना कारोबार बहाल करने के लिए कर्ज हासिल कर रहे हैं। कर्जे पंजाब हुकूमत और बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से इंतहाई कम शरह सूद पर फराहम किए जा रहे हैं जिनकी वापसी की शराइत इंतहाई आसान रखी गई है। 20 से 50 साल उम्र के मर्द और खवातीन को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए मालियत तक के कर्जे फराहम करने का सिलसिला जारी है, जबकि ख्वाजा सरा और खुसूसी अफराद भी अपना रोजगार शुरू करने के लिए इस मंसूबे से फायदा उठा सकते हैं। हमने अपनी यूथ को और उन लोगों को जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको और स्पेशली ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हमने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया। तकरीबन 10 मिलियन जो है एक बंदा मैक्सिमम अपने लोन को अवेल कर सकता है। 3 महीनों के अंदर 1.25 लाख के करीब लोगों ने हमें अप्रोच किया जिसमें 12,000 एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर दिया गया है जो कि 17 अरब के करीब जाके बनती हैं। ख्वाहिशमंद अफराद ने कर्ज के हसूल के लिए दरखास्तें जमा करा रखी हैं और अब तक 18 करोड़ रुपए की रकम मुतादिद खुशनसीबों को जारी की जा चुकी है। मैंने पंजाब रोजगार स्कीम में अप्लाई किया था बुटीक के बिजनेस के लिए, तो मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। मेरा पंजाब बैंक में 5 लाख का कर्जा मंजूर हुआ है और बगैर किसी सिफारिश के। मेरा जो काम है वो आटा ग्राइंडिंग जो है गंदा मीट ग्राइंडिंग का है और मुझे आज 5 लाख रुपए का कर्जा जो है पंजाब बैंक की वसाकत से मुझे आज मिला है। रोजगार स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत इस मंसूबे की कामयाबी के पेश नजर रोजगार स्कीम के फंड्स में इजाफा करने के लिए भी पुरज़म है। इस मंसूबे से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के जरिए दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत आसान शराइत पर कर्जों के इजरा से जहाँ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे वहीं सनतों को भी फरोग मिलेगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न नौरोज रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। इस सकाफती त्यौहार को शमसी कैलेंडर के नए साल और बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। तफसील जानिए कासिम नसीम से। बल्तिस्तान का रिवायती त्यौहार जश्न नौरोज बल्तिस्तान भर में रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। स्कर्दो में हर साल जश्न नौरोज के त्यौहार पर कई रोजा रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। इस साल ये तकरीबात कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के नाम रखी गई हैं। स्कर्दो में इस त्यौहार पर पूरे खित्ते में खास तौर पर अंडे लड़ाने के मुकाबले होते हैं। इस मकसद के लिए अंडों को खास तौर पर रंगा जाता है। बच्चे दिन भर अंडे लड़ाते फिरते हैं। नौरोज पर घरों में भी ईद का समा होता है। स्कर्दो में शाही पलोग्राउंड में पोलो, नेज़ेबाजी और मुख्तलिफ खेलों में शामिल खिलाड़ियों ने मार्च पास का मुजाहरा किया। नौरोज की इन रंगारंग तकरीबात में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर रात को आतिशबाजी और महफल का शानदार मुजाहरा किया गया, जबकि बल्ती रिवायती तलवार रक्स भी पेश किया गया। नौरोज बल्तिस्तान की एक अजीम त्यौहार है। इंशाअल्लाह हम
हर साल शायान शान तरीके से मनाएंगे। हमारी नई जनरेशन इस रस्म को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी पुरअज़्म है और हमारी भी यही कोशिश है कि ये जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो रहा है ये नई नस्ल में प्रॉपरली मिल सके। Since it's Nowruz, we're able to see the bazaar and the polo festival and experience what Nowruz is and what it means to the people, and also get to see like the area come to life after the winter. गिलगित में भी जश्न नौरोज जोश व खरोश से मनाया गया, जहां डाडा को मरकजियत हासिल रही। मेहमानों की रिवायती डिशेस और खुश्क में वजह से तवाज़ु की गई। दीगर अजला, गजर, हुंजा, शिगर, गांचे और अस्तोर में भी ये त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाया गया। नौरोज के इस रिवायती त्यौहार के जरिए हम बल्तिस्तान के मुनफरिद तहजीब और सकाफत को फरोग़ दे सकते हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। नाज़रीन, 21 मार्च हर साल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जश्न नौरोज के नाम से मनाया जाता है। इस तारीख को दिन और रात का दौरानिया यकसा हो जाता है। मौसमी बहार की आमद पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार दुनिया के कई मुल्कों में मकबूल है। पेशावर से अमाद आवान की रिपोर्ट देखिए। बागो-गुल शायरी के वो इश्तिहारे हैं जिसमें महबूब के लबो रुखसार की तमसील भी है और कुदरत के जमाल के रंग भी। मौसम बहार इसीलिए चरिंद परिंदों से लेकर लहलहाती फसलों, गुल बूटों और हत्ता के हजरत इंसान के लिए भी तबीयत का नयापन लाता है। सर्दी के मौसम के गुजरते ही जब मौसम चोला बदलता है तो फिजा की दहलीज पर बहार कदम रखती है। मौसमों के इस उलट फेर में ज़माने कदीम के बासी नए साल का इस्तकबाल करते हैं, जो बरसगीर में बसंत के त्यौहार से जाना जाता है। ये बाहर की आमद को वेलकम की फेस्टिविटी है। ये कोई BC से भी पहले से ही ये फेस्टिविटी आ रही है। दहकान या किसान वगैरह है वो फसल की बोई करते थे, मेले भी होते हैं। पुश्तों के मशहूर शायर खुशहाल खान खटक ने अपने पोइट्री में भी इसका जिक्र किया है। ये कल्चरल है बेसिकली, और कल्चर ऐसी चीज है जो कि बहुत से कौमियतों को इकट्ठा कर सकती है, उसको यूनाइट कर सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौसम की करवट से जन्म लेने वाली बहार सिर्फ फूलों और बागों तक नहीं बल्कि कई तहजीबों और माशरों तक फैली हुई है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया और तुर्कों समेत बल्कान की रियासतों में लोग इसे नौरोज कहकर पुकारते हैं, जहां 21 मार्च को आम तातील होती है। इस दिन लोग अपने घरों को संवारते हैं, सतरंगी ड्राई फ्रूट से मेहमानों की तवाज़ो करते हैं और एक दूसरे के घर दावत उड़ाते नजर आते हैं। तारीख पर नजर रखने वालों का मानना है कि नौरोज 3000 साल से मनाया जा रहा है। तहजीब व तमद्दुन की सतरंगी बहार में हर मजहब और कौम का फर्द शामिल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2010 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल फेस्टिवल में शामिल करते हुए नौरोज को आलमी दिन का दर्जा दिया ताकि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के लोग आमद बहार का जश्न मना सकें। जश्न नौरोज रंगो नस्ल की तमीज से कोसों दूर एक ऐसा त्यौहार है जो अक़वाम आलम के माबैन तवाज़ुन को उजागर करने की दावत दे रहा है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। चीनी सिफारतखाने और चाइना पपेट आर्ट थिएटर के ताउन से पाक चीन तहजीबी और सकाफती वर्षा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कठपुतली तमाशे समेत सकाफती वर्षा की रंगारंग और पुरकशिश नुमाइश हुई। फनकारों ने दोनों मुल्कों की लोक सकाफत, अफसानों और कहानी सुनाने की रिवायात को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। पाकिस्तान और चीन के फनकारों के अंदाज और तकनीक में यकसानियत का उनसर नुमायां था। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक समेत दीगर शुरका ने तफरीह के जरिए तालीम की अहमियत और आइंदा नस्लों के लिए सकाफती और रिवायती फ़नून पर रोशनी डाली। पंजाब हुकूमत ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए ज़िला जेहलम के तारीखी मकाम टिल्ला जोगिया में हाइकिंग ट्रैक की तैयारी शुरू कर दी। मंसूबे की तामीर से पोटोहार के इलाके में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। तफसील जानिए नईम भट्टी से। सतह समुद्र से 3280 फुट की बुलंदी पर जिला जेलम में वाक़या टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क के इफ्तिताह के बाद पंजाब हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए टिल्ला जोगिया में हाइकिंग ट्रैक की तैयारी शुरू कर दी है। किला रोहतास टिल्ला जोगिया से 24 किलोमीटर जीप ट्रैक भी बनाया जा रहा है। हमारा जीपेबल ट्रैक बन रहा है और उसके साथ साथ हाइकिंग ट्रैक जो हम तकरीबन 4 किलोमीटर का, जिसके अंदर हम बेंचेस, गजीबोज और पब्लिक फैसिलिटेशन की डिफरेंट चीजें यहाँ पे लगाएंगे।
टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क की तारीखी, सकाफती और सियाहती अहमियत को उजागर करने के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जेएलएम के हाइकर्स, योगी और फोटोग्राफर 7 किलोमीटर हाइकिंग करते हुए नेशनल पार्क की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हुए टिल्ला जोगियां पहुंचे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे रास्ते में थोड़ी दुश्वारी हुई। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की खूबसूरती किसी से कम है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब और रावलपिंडी स्पोर्ट्स क्लब के इस एडवेंचर टूर में शामिल 75 हाइकर्स, योगी और फोटोग्राफर हाइकिंग करने के बाद जब टिल्ला जोगियां पहुंचे तो माजी की याद ताज़ा करने के लिए योगा सेशन हुआ, जिसमें एडवेंचर टूर में शामिल योगियों ने हिस्सा लिया। ये टिल्ला योगियां और आज रियली यहाँ पर योगी इकट्ठे हुए हैं। टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क की खूबसूरती और दिलकश मनाजर को अक्सबंद करने के लिए एडवेंचर टूर में शामिल फोटोग्राफरों के दरमियान हाइकिंग के दौरान बनाई गई तस्वीर का मुकाबला हुआ। टिल्ला जोगियां हाइकिंग ट्रैक दुश्वार गुजार होने के साथ इंतहाई दिलकश और जाज़बे नजर है। हाइकिंग और जीप ट्रैक पुटवार के सियाहती मकामात में एक खूबसूरत इजाफा होगा। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, जेएलएम। थर पार्क की सयाहत और सकाफत को उजागर करने के लिए थर में सरमायाकारी और खेलों के फरोग के लिए थर बदले का पाकिस्तान के उन्वान से 3 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मेले की रंगारंग तकरीबात और नुमाइश के बारे में देखते हैं थर पार्कर से शिराज अली डाहरी की ये रिपोर्ट। थर पार्कर में 3 रोजा थर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मिट्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिले इंतजामिया, थरकोल, समाजी तंजीमों और पाक आर्मी के मुश्तरका तावन से थर रंग फेस्टिवल में मकामी दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट, थर में पैदा होने वाली सब्जियों और लजीज मुनफरिद खानों के स्टॉल्स लगाए गए। फेस्टिवल का मकसद मकामी लोगों की मेहनत से तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट और थर की सकाफत को उजागर करना है। ये हमारे जो हुनर की उजागर हुआ है, हमारा थर भी नाम रोशन हुआ है, हमारे बच्चों के टैलेंट जो है छुपे हुए थे दीवार के पीछे, उसको भी सामने आ रहे हैं। थर का एक ये भी रूप है कि थर का कल्चर, सकाफत, कलर, थर का टैलेंट, थर के बच्चों का टैलेंट, एजुकेशन, ये भी तो डिस्प्ले होना चाहिए। थर का ये तारक भी है ना। थर फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने टेबलोज, आर्मी और रेंजर्स के जवानों ने मार्च पास और दिफाई हिकमत अमली से मुतल्लिक डेमोज पेश किए। फेस्टिवल में रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम, तकारीर और ऊँटों के रक्स ने समा बांध दिया। फेस्टिवल में खूबसूरत और रंगारंग फूलों की नुमाइश का इनेकाद भी किया गया था। 3 दिन तक जारी रहने वाली थर फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, थर पार्कर। जिनाज़िन, शायरी इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करती है। आज दुनिया भर में शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिनाज़िन, आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं पीर चनासी, जहां मौसम सरमा की ठंड खत्म होते ही सियाहती गहमा गहमी का आगाज हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। पीर चनासी यूं तो गरमाई सियाहती मकाम है जो कि मौसम सरमा में बर्फ से ढका रहता है। तहम मार्च के आखिर में यहाँ बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और सड़क खुलते ही सियाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। सियाह यहाँ आते हैं और निस्बतन गर्म मौसम में भी यहाँ बर्फ के मजे लूटते हैं। हम यहाँ पीर चनासी घूमने आए हुए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ हर तरफ बर्फ है। आज हम लोगों ने स्नोमैन बनाया है, हमें बहुत मजा आया है। यहाँ गर्मी में तो टूरिस्ट का काफी रश रहता है, सर्दी में भी ये बर्फ से एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट आते हैं क्योंकि रोड पक्का है। पीर चनासी तक, पीर चनासी से आगे ये इस रिज लाइन के ऊपर अगर मजीद रोड और क़याम तहाम का बंदोबस्त हो सके तो टूरिज्म जो है इसमें फ़रोग पा सकता है। सतह समंदर से 9,500 फुट बुलंद पीर चनासी मुजफ्फराबाद से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां अजदही की तरह बल खाती मगर पुख्ता सड़क के जरिए पहुंचा जाता है। मगर कुछ लोग हाइकिंग करते हुए भी इस मकाम तक पहुंचते हैं। पीर चनासी की वजह शोहरत यहाँ पर मदफून बुजुर्ग हस्ती सैयद हुसैन शाह बहारी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, जो कि यहाँ की एक बुलंद चोटी पर वाक़ है। सियाहों के साथ साथ ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में यहाँ हाजिरी देने आते हैं। यहाँ एक छोटा सा बाजार भी है जहाँ खाने पीने की सस्ती अशिया महंगे दामों मिलती हैं। पीर चनासी के आसपास नीलम, जहलम और वादी कागान के दिलकश पहाड़ी सिलसिले हैं। आजाद कश्मीर में सियाहत ऐसा अहम शोबा है जिस पर हुकूमत अगर संजीदगी से तवज्जो दे तो ये खित्ता खुद कफालत की मंजिल हासिल कर सकता है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पीर चनासी, जिला मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर।
नासिन पाकिस्तान में तैनात उर्दन के सफीर इब्राहिम अलमदानी ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सरदार यासिर इलियास खान के हमरा कहूटा इंडस्ट्रियल ट्रायंगल का दौरा किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इब्राहिम अलमदानी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो फार्मास्यूटिकल्स शोबे में उर्दन और पाकिस्तान के माबैन मजबूत रवाबित को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सरदार यासिर इलियास खान ने उर्दन के सफीर को पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सलाहियत से आगाह किया। बीजिंग में जारी चीन डेवलपमेंट फोरम के माहिरीन का कहना है कि चीन का 14वां 5 साला मंसूबा डिजिटल मईशत के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करेगा, जबकि तरक्की के सबसे ज्यादा पायदार और बेहतर रास्ता बनाने की आलमी कोशिशों को फरोग मिलेगा। डिजिटल मईशत में इस मंसूबे के तहत लोगों और सनतों को अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 3 रोजा फोरम में अगले 5 साल में चीन की मुआशी और मुआशरती तरक्की की समतों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद चीन के साथ मुश्तरका तरक्की के हुसूल में बैन अल-अक़वामी कारोबारी बिरादरी के एतमाद को मुस्तहकम करना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। इस दौरान बास मकामात पर यालाबारी, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत में लह -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब मुल्क के अहम शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज ने इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल कर लिया है। मुकाबले 18 से 21 मार्च तक नेपाल में मुनक़िद हुए। इवेंट में दौड़, साइकिलिंग और कश्तीरानी के मुकाबले शामिल थे। पाक फौज ने इन मुकाबलों में पहली बार हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में 20 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज ने इंटरनेशनल कैटेगरी में तलाई तमगा हासिल किया। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद कैचिंग प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे और 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। वनडे मैचेस 2, 4 और 7 अप्रैल को खेले जाएंगे। T20 मैचेस 10, 12, 14 और 16 अप्रैल को शेड्यूल हैं। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बहुत अहम है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। काफी अच्छी सीरीज होने जा रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी ये सीरीज जीतना। कैंप बहुत अच्छा चल रहा है। हम काफी अर्से से वनडे क्रिकेट नहीं खेले। लास्ट सीरीज हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे, तो उसको काफी टाइम हो चुका है, तो इसीलिए एक